Let's start today our journey towards the nutrition, which is necessary. हर किसी के लिए हर disease में important है. But today we are going to talk only about cancer and heal your cancer through using food as your medicine. So now we need a action. हमको action चाहिए because क्या आपको पता है कि डेवलप्ड वर्ल्ड में कैंसर इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ राइट आफ्टर हार्ट डिजीज एंड ग्लोबली द नंबर इज इंक्रीज और 2030 तक ये डबल हो जाएगा. सो वी हैव टू टेक एक्शन एंड करंटली more than 1 in 3 people will develop cancer in their lifetime. So we really have to take care. Now let's understand कि कैंसर क्या है. So healthy cells, the growth and death of healthy cells are controlled carefully. ये अच्छे से controlled हो जाता है. But cancer cells में क्या होता है? These cells grow and divide too fast and don't stop when they have to stop or they should stop. This is called cancer cells. Now understanding cancer. So before understanding the impact of nutrition on cancer, it is first important to understand biochemical and psychological determinants of the disease. So cancer are a result of interaction of genetics, epigenetics, environment of the individual. We cannot blame पूरा की पूरा genetics या हमारे DNA पे कि हमको उससे कैंसर आया. No. So it is the most important factor is our environment and our lifestyle which we carry. And cancer is a chronic disease. एक अच्छी बात यह है कि कैंसर क्रॉनिक डिजीज है पर ये प्रिवेंटेबल भी है. सो ओनली 5 to 10% आर जेनेटिक्स. रिमेनिंग 90 to 95% आर बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट एंड देयर लाइफस्टाइल. तो कैंसर को क्योर कर सकते हैं ये हमारे ही हाथों में है. दिस इज ऑन अस. एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? कैन बी स्मोकिंग, डाइट, अल्कोहल, ओबेसिटी. ओबेसिटी के कैंसर केसेस इन यूएस एंड all over the world increase हो रहे हैं because of obesity. It can be infection, your environment, pollution and radiations. Now cancer में जो death के cases होते हैं that can be 25 to 30% due to tobacco, 30% because of diet, 15 to 20% because of infection, 10 to 20% जो increase हो रहा है because of obesity, 4 to 6% is because of alcohol, 10 to 15% because of other factors like environment and radiations. But here is the good news that we are in control. According to World Cancer Research Fund, जिन्होंने भी high fruit और vegetable diet रखा है या उनका intake ज्यादा रहा है, can reduce cancer incidence by 40 to 64%. And November 2010 में issue of nutrition and cancer के study के according वुमेन हु कंज्यूम्ड, जिन भी लेडीज या औरतों ने ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स और सी फूड कंज्यूम किया था, तो 86% लेस लाइकली टू डायग्नोज विथ ब्रेस्ट कैंसर. सो हियर इज अ गुड न्यूज ऑल्सो, राइट? एंड देयर इज अकॉर्डिंग टू रिसर्च थ्रू गुड न्यूट्रिशन वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव सर्वाइवल रेट्स ऑफ पीपल विथ सम कैंसर्स बाय calming down the genes responsible by cancer growth. तो मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि हमारे जीन्स और डीएनए को हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो उससे हमको डिजीज आई है वो कंट्रोल हो सकती है थ्रू आवर लाइफस्टाइल एंड गुड न्यूट्रिशनल डाइट. नाउ लेट्स गो टू न्यूट्रिशन. नाउ आई वांट टू आस्क एवरीवन, आर यू और योर लव्ड वन गोइंग थ्रू कैंसर ट्रीटमेंट? तो प्लीज, फॉर कैंसर वी नीड अ सपोर्ट गोल सबसे पहले. And that's divided into two, primary goals and secondary goals. So primary goals is support tumoricidal effects of treatment, which helping treatments that kill or control cancer cells work better. हमको ऐसे treatment को help करना है. We have to reduce side effects of treatment. So chemotherapy और radiations के जो negative effects है उसको कम करना है. We have to support overall wellness during and after cancer treatment. Secondary goal, to support immunity.
तो कैंसर ट्रीटमेंट से जो भी हमारा सिस्टम वीक हो जाता है, इम्यून लेवल वीक हो जाता है, उसको सपोर्ट करना है, उसको स्ट्रेंथ देना है. रिड्यूस ट्यूमर प्रमोटिंग फैक्टर्स, इनहिबिट मेटास्टेसिस एंड ट्यूमर प्रोग्रेशन, एंड प्रमोट अप्रोप्रिएट अपटोसिस. So these are the two support goals. अब ना ये सपोर्ट हम कैसे करेंगे, ये सेकेंडरी एंड प्राइमरी गोल्स को हमको, अब कैंसर तो हो गया ना, हाउ डू वी सपोर्ट दिस, हाउ डाइट कैन अफेक्ट कैंसर. अब डाइट का कैंसर में कैसे रोल है, ये कैसे रोल करेगा, अपना क्या इंपॉर्टेंस है टू मिनिमाइज द साइड इफेक्ट्स फ्रॉम कैंसर ट्रीटमेंट. नंबर 1, we have to do this, and it also increase energy and boost immunity. क्योंकि डाइट ही कैंसर ट्रीटमेंट में हमारे गुड सेल्स एंड बैड सेल्स दोनों पे ही इफेक्ट आता है. तो बैड सेल्स तो गए, दैट इज अ गुड न्यूज, बट गुड सेल्स भी गए हैं जो हमको अब दोबारा रीग्रो करना है, रीगेन करना है हमारी बॉडी को. सो दैट वी विल डू थ्रू आवर डाइट एंड न्यूट्रिशन. अब सबसे पहले फैक्टर कम्स बी अ हेल्दी वेट. अगर आप योर लाइक कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान या बाद में भी आपको अपना वेट मेंटेन करना है, इट शुड नॉट बी टू मच और इट शुड नॉट बी टू लेस. तो आपको वेट मेंटेन करके रखना है, और वो वेट किसी एक फूड से नहीं होगा कि मैं सिर्फ मैं कार्ब्स पे ध्यान दूं या सिर्फ मैं प्रोटीन पे ध्यान दूं. इट इज अ ओवरऑल बैलेंस डाइट विच यू हैव टू मेंटेन. नीड अ बेटर न्यूट्रिशन, सो इट इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने डाइट में वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, हेल्दी ऑयल्स एंड लीन प्रोटीन. बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन एंड प्रोटीन पे ही ध्यान देते हैं. दे फोकस ऑन प्रोटीन पाउडर्स एंड एवरीथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड. ओवरऑल सब कुछ चाहिए. नंबर 2 विच इज अ बिगेस्ट फैक्टर, आपको अपना फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है, क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी में होते हैं. तो यू हैव टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, जिससे वो, अब ट्रीटमेंट के दौरान एक चीज और होती है, पानी का टेस्ट, मुंह का टेस्ट खत्म हो जाता है. यू डोंट फील लाइक ड्रिंकिंग वाटर. या जब ट्रीटमेंट चल रहा है, द पेशेंट इज मोस्टली इन एसी, तो दे डोंट फील लाइक ड्रिंकिंग वाटर. सो उस केस में यू कैन यूज वाटर इन्फ्यूज वाटर, जिसमें आप स्ट्रॉबेरी इन्फ्यूज कर सकते हैं, लाइम इन्फ्यूज कर सकते हैं, पुदीना. यू कैन हैव अनस्वीटेन हर्बल टीज, बट टेक केयर उसमें आपने शक्कर नहीं डाला है ज्यादा, राइट. दिस इज माई फेवरेट विच मैं हर सेशन में बताती हूँ, माई फेवरेट जिंजर टी एनी टाइम. सो ट्राई जिंजर टी फॉर योर नोजिया. जब आपको ट्रीटमेंट के टाइम, नोजिया इज द बिगेस्ट थिंग जो पेशेंट सफर करते हैं. So you can have ginger tea. You can boil water and ginger grate करके boil करके you just can have directly ginger tea, or you can add lime also. It is very good for your inflammation also. आपका सारा पेन सक कर लेता है ये. Now second biggest thing is again कैंसर पेशेंट को, उनके घर वालों को, उनके क्लोज वंस को ध्यान रखना है कि a patient should have a small amount of food. उनका प्लेट का साइज बहुत छोटा होना चाहिए. जो अभी 3 मील्स ले रहे हैं, डिवाइड इट इनटू 6 मील्स, बिकॉज उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो गया है. तो हमको न्यूट्रिशन तो बराबर देना है, खाना तो बराबर देना है, बट इन ए स्मॉल पोर्शन, राइट. एंड मोर ऑफ वेजिटेबल्स को ज्यादा इंक्लूड कीजिए. अगेन नाउ ईट प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, आपको आपके दूसरे जो डाइजेशन को सपोर्ट करे. सो योगर्ट एंड कर्ड इज वेरी गुड विच सपोर्ट दिस. इसमें आप बेरीज ऐड कर सकते हैं, सीड्स ऐड कर सकते हैं, नट ऐड कर सकते हैं. यू कैन हैव दिस इन द फॉर्म ऑफ स्मूदीज, यू कैन हैव इन द फॉर्म ऑफ छाछ, यू कैन हैव इन द फॉर्म ऑफ रागी गंजी, राइट. बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स है. यू हैव टू अवॉइड एंड लिमिट द फास्ट फूड कंजप्शन, क्योंकि अब बॉडी से सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो गए. तो वी रियली हैव टू थिंक कि अब जो भी हमारी बॉडी में जा रहा है, इफ आई एम ईटिंग दिस बाइट, उसमें कितना न्यूट्रिशन है, ये खाना जो मैं खा रही हूँ वो मेरी बॉडी को क्या दे रहा है, इज इट गिविंग मी अ गुड रिजल्ट, या इसमें कुछ भी नहीं है. अब वही खाना खाना है जो हमारी बॉडी को अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन और मिनरल्स दे. Sugar and cancer risk. So it's like everybody know कि sugar is bad. वैसे भी किसी भी नॉर्मल हेल्दी इंसान के लिए भी sugar is not good.
So eating a diet that is high in sugar can lead to several health issues, including diabetes, organ problems, excess weight, and a cancer. So avoid sugar. You have to avoid alcohol, which is also very bad. So a small amount of alcohol can increase your cancer risk. So for cancer prevention, it's better कि आप alcohol बिल्कुल ही ना ले. Next, very dangerous and बहुत बड़ा फैक्टर है अभी और जो ग्रो हो रहा है कि स्मोकिंग एंड टोबैको में बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं एंड इट कैन डैमेज योर डीएनए ऑल्सो. तो प्लीज जस्ट अवॉइड दिस. अगर आप ले भी रहे हैं तो कंट्रोल कीजिए एंड जस्ट क्विट दिस. सो हम कैंसर प्रिवेंशन के लिए व्हाट वी डू, आजकल ये बहुत बड़ा मार्केट हो गया है. इसका सप्लीमेंट्स का बहुत ही बड़ा मार्केट हो गया है. चलो आयरन डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, कोई भी दूसरी डेफिशिएंसी, लेट्स टेक सप्लीमेंट्स. लेट्स नॉट ईट फूड, हम सप्लीमेंट्स पे ही फोकस कर देते हैं. पर वो सप्लीमेंट्स में भी तो प्रिजर्वेटिव्स है जो हमारी हेल्थ को हार्म करेंगे. सो फर्स्ट, अगर आपकी रिपोर्ट्स में आए हैं, आपको डॉक्टर ने बोला है, प्रिस्क्राइब किया है, सो गो फॉर इट. अदरवाइज अपने खाने से ही आप न्यूट्रिएंट्स और होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स और प्रोटीन से ही यू कैन गेट योर मिनरल्स एंड विटामिन्स. यू डोंट हैव टू हमेशा सप्लीमेंट्स लेना जरूरी नहीं है कैंसर प्रिवेंशन के लिए. नाउ यू हैव टू डिवाइड योर प्लेट, बैलेंस योर प्लेट. आपको अपनी प्लेट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है. 50% पार्ट शुड बी सैलेड, रॉ वेजिटेबल्स. रॉ अगेन फॉर द कैंसर पेशेंट यू कैन स्टीम इट वंस. अगर आप कैरेट खा रहे हैं या आप स्पिनच खा रहे हैं तो अच्छे से वॉश करके आप एक बार स्टीम कीजिए एंड देन टेक इट. बिकॉज अगेन पेस्टिसाइड्स और सबका काफी इश्यूज होता है. वी रियली हैव टू टेक प्रिकॉशन विद दैट. 25% should be your whole grain or starch, and other 25% should be your protein source, which can be fish, beans, soya products. Now this is an important thing. We all do. हमारी लाइफस्टाइल, हमारे खाने में हम सभी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ले रहे हैं which we feel individually, हमको फील होता है कि this is something wrong. For me, I feel कि I'm having a little too much of tea, but then too that is black tea. फिर भी मेरा वो consumption ज्यादा है, and I feel that is the change I have to make in my life now. वो एक दिन में नहीं होगा, कुछ भी magic या miracle नहीं होता है. So we have to change our lifestyle. Baby step लेना है, slowly लेना है. आज सोचा है, and वो step लेने में और वो regular रहने में 45 days तो लगता ही है minimum. So you have to change your lifestyle and take a baby step. Go slow, आराम से, and enjoy that journey. वो process को आपको enjoy करना है. Tension नहीं लेना है कि यार आज तो मैंने चाय नहीं पिया, या आज तो मैंने ये नहीं खाया है, आज तो मैंने मिठाई नहीं खाई है, आज मैंने चॉकलेट नहीं खाई है. So it is a process. A wise man should consider that health is the greatest of human blessing. Let food be your medicine. तो इसीलिए हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. भगवान ने इतनी सुंदर ब्यूटीफुल क्रिएट किया है जो अभी तक साइंस ने किया है. रोबो के फॉर्म में आया है, फिर भी हमारे ह्यूमंस का कोई कंपेयर नहीं है. तो जो गिफ्ट हम हमारे बर्थ से लेकर आए हैं, वो गिफ्ट हमको हमारे पास संभाल के रखना है एज आवर बॉडी टिल आवर डेथ. तो उसको नर्चर कीजिए, उसको नरिश कीजिए, उसको संभालिए. हम डायमंड को तो हमारी तिजोरियों में और हमारी सेफ में रख देते हैं, पर ये जो हमारी बॉडी है, इट इज मोर प्रीशियस देन डायमंड. तो उसको सेव कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, उसको संभालिए जैसे हम बच्चे को संभालते, छोटे से बेबी का केयर करते हैं. सो जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अभी नहीं कर रहे हैं, बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, anybody and everybody, and for cancer patient also, a physical activity is important. Now it can be any form. आपको जो भी पसंद है, what suits your lifestyle, what suits you. It can be yoga, it can be aerobics, it can be Zumba, it can be weight training, it can be normal walk also. और आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो बैठे बैठे अपने बेड पे बैठे बैठे do प्राणायाम एटलीस्ट. ऑक्सीजन, Vitamin O is very important. वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है जो हमको लेना है. इफ यू आर गोइंग थ्रू ट्रीटमेंट, आप कीमोथेरेपी या रेडिएशन ले रहे हैं, तो दिन में 3 times सिट ऑन योर बेड
एंड 5-5 मिनट का सिर्फ नॉर्मल प्राणायाम ही करे, प्राणायाम भी नहीं हो रहा है तो कॉन्शियस ब्रीदिंग ही करे, दैट विल रियली गिव यू गुड रिजल्ट्स। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग, हमको कोई और हील नहीं कर सकता है जितना अच्छा हमको हमारी मदर अर्थ और नेचर कर सकता है, राइट? सो नेचर में आपके आसपास जो गार्डन है उसमें मेडिटेट कीजिए, वो मदर अर्थ के साथ, नेचर के साथ ग्रो कीजिए, जाइए थोड़ा सा ड्राइव कीजिए, झरने के पास जाइए, वो झरने का पानी पीजिए, वॉक इन नेचर, जॉइन हैंड्स विद नेचर। देखिए कि अगर कहाँ पे पेड़ कम है तो एक पौधा ही, पेड़ ही लगाइए, जस्ट ग्रो, पेड़ को हक कीजिए, टच कीजिए, फील कीजिए, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग समवेयर और अदर अपने आप में अकेला है, एंड मदर अर्थ और नेचर वो आपको कंप्लीट कर देगा, एंड दे आर वेटिंग। आप जाइए मदर अर्थ के पास, दे है बहुत सारा प्यार है मदर अर्थ के पास। अपने बुक्स रीडिंग कीजिए वो टाइम में, गुड अपने स्नैक्स पैक करके जाइए, पिकनिक कीजिए एंड रिलैक्स। सो नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए अंजलि और हम लोगों ने मिलके प्लान किया है, एंड वी हैव डन इट बिफोर ऑल्सो। वी डू अ रिट्रीट फॉर द कैंसर पेशेंट्स. Now we are planning in September for Rishikesh, and I will not waste your time. And whoever is interested, please get in touch with Anjali. She will share all the details about the retreat. So now it's your choice. ये आपकी choice है, आपका mindset है कि आपको क्या बनना है. You can be a victim of cancer or a survivor of cancer. It's your wish. So what happens when people open their hearts? They are healed. आज मोना जी ने क्या किया है? She has opened herself. तो वो और आज एक स्टेप और ज्यादा हील हुई है, वो उनको बाद में मालूम पड़ेगा। उन्होंने इतने सारे लोगों के सामने उनकी स्टोरी शेयर करी, तो उनकी हीलिंग एक स्टेप और आगे बढ़ गई है। So this we want from all of you who are suffering from this disease. अपना स्टोरी शेयर कीजिए, अपने पिक्चर्स शेयर कीजिए, और your story could be the key that unlocks someone's prison. So don't be afraid to share it. और किसी को मोटिवेट कीजिए, हमारी एक स्टोरी अगर किसी को इंस्पायर कर सके और मोटिवेट कर सके उसकी जर्नी के लिए, तो नथिंग लाइक इट, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। और आपकी स्टोरी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं पर्सनली, एंड इफ यू वांट वी कैन पोस्ट दिस आल्सो, वी आर देयर विथ यू। सो थैंक यू